ऐसे ही बाय चांस नहीं, आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा शायद। So it has a great story behind. जो दिमाग में जाता और बुक्स पे बात करते हैं, उनका भी एक रेगुलर एक्टिविटीज होती है। आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी एक ग्रुप है। और मेरा कहीं ना कहीं लगता है कि शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता था पार्किंग कैसे करना है या कौन से हॉल में है। कहा शर्मा सर कहाँ बैठे हैं? हाँ, तो शर्मा सर ने आते से ही मेरा पूरा पसीना, मुझे समझ में आ गया था कि मैं कलीग्स को क्यों नरेंद्र सो थोड़ा माइक दूर कर। Is there any child there who wants to participate? You can still come here. We can accommodate more children. Please come, don't hesitate. बाद में ना आपको फील होगा रही तो मैं भी कर सकता था। So there are 3 minutes to go. 5 minutes, 9:45 still. Still 9:45. 9:46. 9:46. So why don't you quickly introduce yourself? बोलिए। पहले से तैयार रहना है। You will not get time to do all this. Hello everyone, I'm Abhi Khandelwal. Hey, lovely, thank you. Good morning everyone. My name is Vedika Bhatia. I am currently pursuing MBBS from MGM Medical College pre-final year. Lovely, thanks. Good morning everyone, myself Lavisha Dubey and I'm studying in class 7th in school The Bhavats Prominent. Lovely, welcome, thank you. Good morning everyone, I'm Pranav Karande. I am currently pursuing BTech in Computer Science 4th year at VIT University, Vellore. Good morning everyone, I am Manaso Kothari in 9th grade. I am studying in Sri Sathya Sai Vidya Vidyalaya. 7th, I'm studying in Shri Kunj School. Very nice, welcome. Vidya. I am Jay. I am in Polar International School, 9th grade. Thank you. Good morning everyone, I'm Zinam Zain in 7th grade in Delhi Public School. Welcome. Good morning everyone. First of all, I want to wish you a very happy Makar Sankranti. I am Anand Kothari. I study in class 11th. I am pursuing PCM. Thank you, thank you. I request Sharma sir to present this bouquet to my father-in-law. पापा को जाने के बाद पहली मीटिंग हम कर रहे हैं और जब ये हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तभी हमारे हम है ना हम आएंगे। तो आई होप यू आर हियर इन ऑल द मीटिंग्स। थैंक यू सो मच। ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? या 30 सेकंड्स टू गो। तो हमने ना पार्ट 1 जब दिसंबर में किया तब उसके कुछ इनिशियल चैप्टर्स लिए थे और अब मैं पूरी किताब को ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिवाइंड करके भी ले रहा हूँ बिकॉज आई न्यू देयर विल बी पीपल हु वर नॉट देयर इन पार्ट 1। तो हम उसको पहले वाले पार्ट को भी ब्रीफली लेंगे so that you have a full exposure to the entire book. Yes. Yeah, start. So welcome to this session of book review. Those of you who have yet not joined in Indore Art Club can just send a message. We are collecting 10,000 people and each WhatsApp group has 1,000 members. Currently the 6th group is on. तो आप दूसरों को भी ऐड कर सकते हैं। Atomic obviously means small but still strong, very important. And habit, ये बड़ी important चीज है। It's a routine. It's an automatic response to a specific situation. It's a routine and automatic response. कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर बड़ा खतरनाक सा एक वो आता है
moment, and then you can bounce back with your resilience, and that's what this gentleman has done. He was airlifted और उसकी countless surgeries हुई, पूरा उसका face में कुछ 12-15 fractures थे, and quality of our life depends on the quality of our habits. Yes. Maybe there are people who can achieve incredible success overnight. Advanced tactics and finally conclusion. Conclusion में दोस्तों इन्होंने यहाँ तक कि ये भी बताया है कि हैबिट्स के डाउनसाइड्स क्या है. मतलब जरूरी नहीं है कि सारी आदतें यूजफुल ही हों, और आदतों इन जनरल आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट गुड और बैड हैबिट्स. एनी हैबिट के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, बिकॉज you may go into automaticity and you may yes. Okay, so Aristotle said that we are what we repeatedly do, and researchers estimate that 50% of our actions are done out of habit. Oh yeah, so obviously this is so important that we take care of our habits, because 50% या शायद उससे भी ज़्यादा हम सब ऑटोमेटिक मोड में होते हैं. So we get what we repeat. अब आप मुझे ये बताएं कि ये तो पत्थर तोड़ रहा है, तो उसने जब 850 बार हिट किया तब पत्थर टूटा. तो कौन से वाले हिट से पत्थर टूटा? 850. या सारे, let's give a big hand to this boy. So all the efforts were equally important. It is just by chance कि वो लास्ट में उससे हुआ है. But every step, every effort, every action was important. एक्चुअली ना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, एक आदमी, कोई भिखारी है, वो पैसे मांग रहा है, आपने उसको 1 कॉइन दिया, क्या वो अमीर हो गया? सॉरी, नहीं हुआ. अच्छा, एक और कॉइन दिया, अब अमीर हो गया. अच्छा, 1000 कॉइन दिया, अब अमीर हो गया. 10,000 कॉइन दिया, अब अमीर हो गया. और 5 लाख कॉइन दिए, तब अमीर हो गया. 50 लाख कॉइन दिया, अब अमीर हो गया. अब तो हो गया अमीर. तो कौन से वाले कॉइन से अमीर हुआ? Which coin? एक कॉइन से नहीं हो सकता था. When you said एक कॉइन से नहीं हो सकता है, तो कैसे वो हो गया, कब हो गया? So these are some of the terms. A heap. When it is single, double, multiple, और heap कब कहेंगे? एक कौन से सिक्के को हटा लूं तो वो heap नहीं है, और कौन से सिक्के को डाल दूं तो वो heap है. You can't say that, right? I thought there was somebody who chased me and said, "Hey, Dr. Rawat, मैं आपको सोच रहा था कि ये कौन है? सर आप कितने एक्टिव हो, सर आप तो गजब एनर्जेटिक हो, सर आप तो ये, सर आप तो वो." And then at the end he says, "सर इस एज में भी आप कितना अच्छा करते हैं." I was like, what? आज सुबह की बात. So this is a Sorites paradox. ये एक्चुअली एक टर्म है. मैं इसके ऊपर गया, आप लोग जिसको इंटरेस्ट है वो नेट पे जाके देख लो उसको. ऐसा लिखा हुआ है, a grain of wheat does not make a heap. तो अगर एक ग्रेन से नहीं होता तो 2 होता है. So this is what it is. Another point that it makes in the fundamental part is we should forget about goals and focus more on. Does it sound something similar? Anyone? Yes? Yes. हाँ, फल की चिंता मत कर. ये देखो, ऐसे ही तो कुछ है. बस किया. Your habits have a powerful impact on our likely that we are doing same things as we did last year. Thank you so much. Sorry, I forgot to delete this. मैं normally किताब को पढ़ता हूँ ना, उसमें अधिकतर किताबों में your लिखा होता है, और मैं उसको अपनी टॉक्स में r करके चेंज करने की कोशिश करता हूँ. That sounds more मतलब like otherwise ऐसा लगा कि मैं तुमको सिखा रहा हूँ. I think it applies to all of us. So I forgot to delete that. Why? So तो दोस्तों ये उन्होंने बताया. अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि आप अंदर से चेंज करने के लिए पहले बाहर के गोल रखिए और फिर सोचिए कि आप अंदर से चेंज हो जाओगे. ये मत करो. ये कहते हैं कि पहले आप ये सोचो कि मैं अंदर से ऐसा हूं, तो फिर बाहर आप अपने आप वैसे ही एक्शन करोगे. सो गो फ्रॉम इनसाइड आउट. आइडेंटिटी अपने आप एस्टेब्लिश करो कि मैं कैसा हूं, अपने आप को उस तरह से देखो, so that you don't have to make too much efforts for the process and the outcomes. So don't go from outcomes to inside. The goal is not to read a book, the goal is to become a reader. Yeah.
The goal is not to run a marathon, the goal is to become a runner. Yes. The goal is not to learn an instrument, the goal is to become a musician. Yeah, lovely. Thank you so much. So that is the goal. So आप अपने आप को ऐसे महसूस करो, अरे मैं तो रीडर हूँ, अरे मैं तो रनर हूँ, अरे मैं तो म्यूजिशियन हूँ. अब आपके लिए गिटार को उठाकर प्रैक्टिस करना इजी हो जाएगा because you have established that person we are already. So it becomes less difficult. The more we repeat a behavior, the more we reinforce the identity. है ना? अब रोज दौड़ोगे तो हो ही जाएगा मन में क्या मैं तो रनर. रोज म्यूजिक का कुछ प्ले करोगे और ये चीज बाद में आखिर में फिर आएगी. मैं अभी बताता हूँ इस किताब में 4-5 जगह ऐसा लिखा है कि हैबिट को एस्टेब्लिश करने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं है कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल आपने उस हैबिट को एस्टेब्लिश करने में लगाया. तो किस चीज की जरूरत है? रिपीटेशन, रैप्स. कितनी बार किया. How often you attempt it, that will establish habits much stronger as compared to how long you have been trying to do that. ठीक है? इस पे फिर आएंगे बाद में. So the more you repeat a behavior, the more you reinforce your identity, and then like for example, आप अपना रोज आज किसने बिस्तर अपने घड़ी किए सुबह? दिव्या देख रही है पलट के, हाथ नीचे करो. तो अगर आप ये किताब पढ़ रहे ना, ये I don't know how is this example, but this example I read it. So actually it is both ways, you know. I mean it's not one way. Your identity shapes your habits, and then as you do it more often, you also further establish your identity. Now before we go to the useful habits, ये थोड़ा सा एक उन्होंने एक्सरसाइज दिया है और उन्होंने कहा कि आप एक लिस्ट बनाएं. हम में से कितने लोग ऐसी लिस्ट बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं कि मेरी कौन सी नॉन यूजफुल हैबिट्स हैं. या तो उसने उस किताब में तो ऐसा लिखा है कि भैया अपने परिवार से और दोस्तों से पूछो, तुम नहीं बना पाओगे लिस्ट. यू नो यू वोंट बी एबल टू डू दैट. सो नाउ वंस यू हैव डिस्कवर्ड दोस, then you tell I am about to do this action even though it is not helping me. बोलो जोर से और फिर करो अगर हिम्मत है तो करने की. राइट? Hearing your bad habits spoken aloud makes the consequences seem more real. It adds weight to the action rather than letting yourself mindlessly slip into the old. तो ये बोलने की आदत और इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, ये भी कुछ किताबों में, सेल्फ हेल्प बुक्स में काफी जगह मेंशन की हुई है. तो इस चीज का कुछ यूज तो होता होगा. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब आधे घंटे स्क्रॉल करने वाला हूँ, रील्स देखने वाला हूँ, तो बोलो हाँ मैं आधे घंटे बिल्कुल बेहुदा काम करने वाला हूँ जिससे मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला. Here I go. मुश्किल होगा. कार्ल जंग ने कहा until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. तो हमको अनकॉन्शियस को कॉन्शियस तो करना है. वी शुड फाइंड आउट, अरे यार ये तो मेरी ऑटोमेटिसिटी से अपने आप ही कर रहा हूँ, मैं बिना सोचे समझे ये एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उससे मुझे बाहर निकलना है. सो वी शुड ओपन आवर आईज. The most useful key for the changing habits is maintaining awareness of what we are actually doing. Yeah, thank you so much. So we should be aware of what we are doing. ठीक है? So the summary of these fundamentals: habits are not about having or achieving something; it is about becoming someone. So that is a very important thing. Quite literally, we become our habits. Therefore, habits are so important. अब दोस्तों सेकंड पार्ट में जा रहे हैं. किताब के 4 पार्ट्स में मैंने करा. तो सेकंड पार्ट में 4 स्टेप्स दे रखी. दिस इज हाउ दिस बुक इज सो पॉपुलर. कोई भी अगर एटॉमिक हैबिट्स की बात करता है तो वो सब इसी की बात करता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड. क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड. क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड. सो क्यू का मतलब कि हमने आप कुछ नोटिस किया कि यार ये इंटरेस्टिंग है, इसको तो ट्राई करूंगा मैं. क्रेविंग में दैट यू आर फर्दर मोटिवेटेड एंड एक्सपेक्टिंग सम इमीडिएट प्लेजर. आपको लगता है अरे यार ये करूंगा तो मुझे मजा भी आएगा. देन यू मेक इट, देन यू एक्चुअली डू इट. है ना? दैट एक्चुअल एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. द एक्चुअल हैबिट, द एक्शन. एंड अगर ये आपकी क्षमता से बहुत ज्यादा है तो फिर आप बहुत ज्यादा बार नहीं करोगे. और इस पे भी बीच में आएगा कि कितना आपको लेवल पे ट्राई करना है. आई थिंक दे कैलकुलेटेड अराउंड 4% ऑफ अबव योर करंट लेवल. अबव 4%. दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड. Interestingly, that is also
something similar to zone 2 of those who are doing exercise or running. उनको अगर पता है कि zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 होते हैं, तो zone 2 is when you are exercising at the rate of around 70% of your maximally predicted heart rate. That is zone 2. थोड़ा सा comfortable zone से आगे. Zone 3, 4 से injuries हो सकती हैं. Zone 1 is not very useful. So this is coinciding with that zone 2, mental activity, zone 2 mental activity. And then of course our brain is a reward detector. उसको तो बस वही पसंद है. क्या करके मुझे डोपामिन अच्छा निकला, क्या करके मजा आया, तो वही बार बार करूँगा. So good habits है तो make it more obvious, make it more attractive, make it easier, make it more satisfying. और bad habits है तो इसका ठीक opposite कर दीजिए. Make it invisible, make it unattractive, make it more difficult and make it unsatisfying. कुछ बात करते हैं इस बारे में. तो चलिए सबसे पहले ये देखें कि how do we make it obvious. तो ऑब्वियस के लिए 3 चीजें उन्होंने बताई. एक तो बताया इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन, दूसरा हैबिट स्टैकिंग और तीसरा डिजाइन योर एनवायरनमेंट. आइए देखिए थोड़ा ब्रीफली. बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें. ये सब चीजें आज से आप अपने घरों में कर सकते हैं, ट्रस्ट मी. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इज, सपोज हम आपसे ये कहें कि आज से आप किताब पढ़ेंगे, तो उसको और प्रॉपरली आप क्या कह सकते हैं, और क्या उसको ऐसे बोल सकते हो कि वो एक्चुअल में होगा. आज मैं किताब पढ़ूंगी. नाउ यू मेक इट बेटर. यस, नो बट आज ये किताब पढ़ूंगी. I'll read 20 pages. हाँ, आज मैं शाम को 5 बजे XYZ किताब उठा के इस कमरे में बैठ के पढ़ूंगी. हाँ, so that is what this book is highlighting. So you should say, I will at this time, at this location, do this. Then more clearer. Then second, of course, is very beautiful thing, habit stacking, है ना? तो आपकी जो current habit है, उसके साथ में जोड़ो. जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले अपना एक Instagram लाइव किया था 7 दिन का. तो उसमें मुझे लगता है कि हम ना सूर्य नमस्कार हम उतना ऑफन नहीं करते जितना हमें करना चाहिए. एटलीस्ट मैं नहीं करता था. अभी मैंने अपना बना लिया है, नहाने से पहले 2 सेट सूर्य नमस्कार करूंगा. ऐसे ही बनाया और फिर किताब खोल के देखे जब मैं पढ़ रहा था उसमें एग्जैक्टली यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है कि आप क्या करिए, टाई योर डिजायर्ड बिहेवियर इनटू समथिंग यू ऑलरेडी डू ईच डे. उसके साथ जोड़ दो. अब क्या फर्क पड़ता है यार, 5 मिनट बाद नहा लिए, ठीक है ना. 5 मिनट में आप 2 सेट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. सो अब इट इज अनलाइकली कि मेरा सूर्य नमस्कार मिस होगा. सो दिस इज कॉल्ड. Now the third thing is design your environment. It is very very important. In fact it says this book, हाँ, जो भी मैं कह रहा हूँ उस किताब में लिखा है. आपको पसंद नहीं है किताब को आप कांटेक्ट करो. मैंने जेम्स क्लियर को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते हो कांटेक्ट आसानी से. You know how much does he charge for a talk? $200,000 US. जैसे ही मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया उनका जवाब आ गया तुरंत. What do you want to contact? फिर उसमें आगे मैंने ना उसमें क्लिक किया. अच्छा ऐसी. What about your talk? He said online talk is half the cost. That's just $100,000 US. यहाँ पे फ्री बंदा खड़ा है ना आपके सामने. So ये क्या कहता है? Motivation is overrated. Yeah, can you believe it? It says motivation is overrated. Don't depend on motivation too much. Discipline और motivation जैसे गूढ़ और कठिन चीजों पे आप ज्यादा मत जाएं. तो सर मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बोलने. ये क्या कहते हैं? हाँ जी, हेलो. Yes. Environment is the invisible hand that shapes human behavior. Yeah, thank you so much. It's an invisible hand. इसलिए environment का importance है. दोस्तों एक बहुत ही important study हुई जो लैंसेट में या किसी उसमें आई थी. तो डॉक्टर एनी ने क्या किया कि उसने मैसेच्यूसेट्स में एक अस्पताल के अंदर बहुत सारे उसने स्टाफ को देखा कि बार बार सोडा जाके पीते. तो सोडा के लिए उसने क्या, कैसे उनको मैं रोकूं. तो उन्होंने क्या किया कि ना जहां पे सोडा थे उन सबको कर दिया पीछे और पानी को कर दिया आगे. और ना सोडा का कंजम्पशन कम हो गया, पानी का कंजम्पशन बढ़ गया. सो दैट इज हाउ शी चेंज द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट एंड इट चेंज द बिहेवियर. अब ये तो होता ही है ना. अब आप ऐसे मम्मियां जो हैं यहाँ पे जो बैठी हैं, आप ऐसे दाना डाल के खड़े हो जाओगे किचन में
तो आपको किचन से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपने मुंह उधर किया और इधर धो गया। तो ये आपने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया, सब आपने ऐसी चीजें रख दी वहां। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई। उन्होंने देखा कि किसी यूरोपियन कंट्री में कि जो मीटर्स थे, मतलब कुछ घरों के अंदर, कुछ एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम था और कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा यार ऐसे इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। उन्होंने पूरा स्टडी किया तो उन्होंने मालूम करा कि जहां पर ये मीटर्स ड्राइंग रूम के आसपास या बिल्कुल लिविंग रूम के आसपास थे, वहां पे खर्चा कम था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम था। और वहां बिल्कुल रिमोट में, गैरेज में एकदम ढका हुआ था या दिख नहीं रहा था रीडिंग क्या आ रही है, वहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑल दीज थिंग्स। अब बताओ, एक मक्खी ने इनका एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट का खर्चा कम कर दिया क्योंकि वहां पे फिर गंदगी कम हुई यूरिनल के अंदर। तो ये मक्खी नहीं है, ये मक्खी का फोटो है। अब ये आदमी की फितरत है कि उसी मक्खी को पकड़ो। एनीवे, so that was about the cues. How do we make it more obvious? Now, how do we make it more attractive? Now see, the entire industry of advertisements and selling and buying is dependent on this. आप कितने दुबले पतले खूबसूरत लोगों को और ये खिलाते हुए दिखाओ, जैसे ये खा खा के ही ऐसे हुए। So it says you can actually do temptation bundling. Temptation bundling is slightly different than stacking. इसमें यह है कि आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या करना चाहिए, ये दोनों को थोड़ा सा लिंक कर दो। तो मतलब अपने आप को आप थोड़ा सा गिफ्ट भी कर रहे हो। तो जैसे कि आपने ये कह दिया कि मैं सिर्फ टीवी देखते हुए, टीवी तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ूंगी, तभी मैं ये सीरियल देखूंगी। तो आपने इस तरह से कर दिया। या आपने ऐसा कर दिया कि भाई मैं काम करते हुए तभी मैं जब अपना काम कर लूंगी तभी मैं कॉफी पीऊंगी। सो व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू नीड टू डू, तो यू आर बंडलिंग दैट। सो व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, एंड देन यू कैन लिंक। अब इसमें गड़बड़ भी नहीं करना है, ये भी बाद में आया है। ये नहीं है कि आप बोलोगे यार मैं दौड़ के आऊंगा और फिर 4 स्कूप आइसक्रीम के खाऊंगा। डोंट डू दैट। फिर उन्होंने कहा कि आप तीसरा हैबिट स्टैकिंग भी उसमें डाल सकते हो। उसमें क्या हो गया, तीनों चीजों पे ऐड कर दीजिए आप। तो आपने करंट हैबिट, उसके बाद में हैबिट आई नीड एंड देन हैबिट आई वांट। तो 3 चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत रोल है। आप लोग इसको माने, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस पर बहुत बड़ी सारी इन्होंने पेजेस लिखे हैं, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इनका ये कहना है कि आदमी की फितरत ऐसी होती है कि जो लोग ज्यादा चीज कर रहे हैं हम भी वही कर लेंगे, भले ठीक लगेगी गलत लगेगी। तो देयरफॉर बच्चों, योर फ्रेंड सर्कल मैटर्स, राइट? यू एग्री दैट फ्रेंड सर्कल मैटर्स? बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर attracted to do the same thing, even if you may or may not consider, because ultimately we are all like, we just follow the heart. So we imitate the habits of 3 groups in particular: the close, which are very close like family; the many, Amazon reviews, है ना, आप देखते ना Amazon के reviews और उसे डिसाइड करते हो; and the powerful, आप इन लोगों को ज्यादा फॉलो करना चाहते हो। मैंने पिछली बार आपको बताया था पॉलगर सिस्टर्स का, राइट? या सो उस बंदे ने तीनों बच्चियों को, ये था साइकोलॉजिस्ट, उसने तीनों बच्चियों को बचपन से ही और कुछ नहीं कराया। उनके घर के अंदर बचपन से बड़े होने तक चेस के अलावा कुछ था ही नहीं। एक्चुअली उस आदमी ने शादी उस औरत से करी, शादी करने से पहले ही कन्विंस कर दिया, सुनो अपन अपना जो भी बच्चा पैदा करेंगे उसको एक ही चीज सिखाएंगे, तुम तैयार हो? और जो लड़की तैयार हुई उससे शादी। हाँ, और फिर उन्होंने सोचा कि एक ऐसी चीज लेते हैं जो कि महंगी नहीं है, जो कि इजीली रेटेबल है, जो इजीली ग्रेडेबल है और जिसको अपन घर पे ही कर सकते हैं। तो नैरो डाउन करते 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 चेस पे आ गए। इवन तो ही हिमसेल्फ वाज नॉट अ ग्रेट चेस प्लेयर, मम्मी को तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। एंड ऑल द 3 गर्ल्स बिकेम लाइक बिग चैंपियंस ऑफ चेस, टू द एक्सटेंट कि ये जो सबसे छोटी है ये तो शायद 20-25 साल तक वर्ल्ड नंबर 1 रही, वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल चैंपियंस, वुमेन चैंपियन, 25 years. See, from age 13 until she retired about 10 years ago.
Then how do we make it easy? तो इनका ये कहना है, अब मैं एक्चुअली सर आपको फोन करने वाला था कि डज इट हैपन? सर ऐसा कुछ है, वैसे आप ऐसे ही बता दें. डू यू रियली फील दैट म्यूजिशियंस मतलब थोड़ा सा साइज भी चेंज हो जाता है, मतलब आर देयर सम स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल कि म्यूजिशियंस में सेरिबेलम, फ्लेक्सिफायर्स में हिप्पोकैम्पस, मैथमेटिशियंस में ग्रे मैटर, सो कैन देयर बी अ स्लाइट स्ट्रक्चरल चेंज इन ऐसा कुछ, ऐसा स्टडी है? Oh wow. So there can be actual structural change if you do a particular activity again and again. अब ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है. I am not sure so much about this. मैं आप लोगों का दिमाग खराब, you know, बहुत अंधेरे में मत रहे. अंधेरे की बात तो वैसे थोड़ी सी सही है. आप में से कोई जानता है what is Blue Monday? Yes. Anyone? Yes. ब्लू मंडे. सो यू नो बेसिकली, चलो क्या मैं ब्रीफली बता देता हूँ. आप बताइए. ब्लू मंडे में यूएसए में जनरली यूएस बिग है. या लवली, ये बैग गया आपके लिए बेटा, ये पीछे कर दो. सो जब अंधेरा है, क्लाउडी है, सन का कोई अता पता नहीं है, और क्रिश्चियंस का 25 दिसंबर भी चला गया, 1 जनवरी भी चली गई, सारा यूफोरिया भी खत्म हो गया, 1 जनवरी आ गई, आपके डेट्स भी हो गए, आपने कुछ लोन भी ले लिए, अब महीने के आखिरी होते होते पैसे भी खत्म होने लग गए, ऊपर से एक मंडे आ गया. तो दे एक्चुअली हैव कैलकुलेटेड 3rd मंडे ऑफ जनवरी इज द मोस्ट डिप्रेस्ड. इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट को कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान से रहना. 3rd मंडे ऑफ जनवरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिप्रेस्ड डे. है ना, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन. 25 दिसंबर गया, 1 जनवरी गई, न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर का ऑरा भी चला गया, पैसे भी खर्च हो गए, और मंडे आ रहा है, सैटरडे संडे भी चला गया. तो दैट इज हाउ दैट. तो अब इन्होंने बताया ऑटोमेटिसिटी पे. तो बेसिकली वही बात है, कितने रिपीटेशन आपने किए, तो एक लेवल के बाद फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ऑफन यू हैव रिपीटेड थिंग्स, बिकॉज वी टेंड टू फॉलो द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट. We are by default lazy, है ना, और जो सबसे आसान चीज है वही रास्ता ढूंढते हैं. Let's design a life in a way that it's easy to do what's right and vice versa. So can we design something like this? अच्छे काम करना आसान हो जाए हमारे जीवन में, और गड़बड़ काम करना हम अपने आप ही मुश्किल बनाए. तो ये कहते हैं, वापस एनवायरनमेंट पे आते हैं कि अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बनाइए कि वो अगले एक्शन के लिए तैयार हो जाए. कैसे? ऐसे, अगर आपको मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, तो रात को ही सब सामान अगर किचन में निकाल के रख दें, तो मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट बनाना आसान हो जाएगा. अगर आपको ड्राइंग खूब करनी है, तो पहले से ही सब चीजें निकाल के रख दो, अपनी टेबल पे रख के. अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो रात को ही आप अपने सुबह के सारे कपड़े और जूते और सब चीजें, मैट वगैरह निकाल दीजिए. अगर आपको डाइट इंप्रूव करना है, तो वही चीजें आप अपने घर में स्टैक करके रखिए. तो इस तरह से यू कैन मेक इट इजियर. और भी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ये तो अच्छी चीजों के लिए हो गए, और गड़बड़ चीजों के लिए मुश्किल कैसे बनाओ, तो गड़बड़ चीजों को मुश्किल ऐसे बनाइए. अगर आप फोन ज्यादा यूज करते हो, तो आप अगले कमरे में रख दिया करो बीच बीच में फोन. रात को 10 बजे बीवी को दे दो, नहीं मतलब लॉक करके दे दो, ठीक है. अगर टीवी बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो उसमें दे रखा है, प्लेलिस्ट दे रखे, सारे स्टेजेस दे रखे हैं कि आपका एडिक्शन किस लेवल का है. देखो, तो रिमोट दूर पे रखिए, रिमोट में से बैटरी निकाल दो, टीवी को अनप्लग कर दो. अरे यार, टीवी को पैक करके कहीं से बैकयार्ड में रख दो, कहीं तो काम करेगा कुछ, है ना. तो अच्छी चीजों को हम इजी बना सकते हैं, और गड़बड़ चीजों को डिफिकल्ट बना सकते हैं. विक्टर हुगो ने एक बड़ा स्पेशल काम किया, इसका भी एग्जांपल दे रखा. ये बंदा एक राइटर था, ठीक है, और उसको है ना अपनी किताब लिखनी थी. अब उसके पब्लिशर से उसकी पूरी बात हो गई, सब कुछ हो गया, हाँ कर दूंगा. अब सिर्फ 6 महीने बचे, और उसके बाद तो डेडलाइन आ गई है, लाइक लाइफ एंड डेथ. नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू. पता है उसने क्या किया? उसने ना, क्योंकि सारी पार्टीज में जा जाके उसको बहुत शौक था पार्टीज में, उसने क्या किया, उसने अपने सारे कपड़े एक सूटकेस में बंद कर दिए. सारे बाहर के कपड़े, टाई, जूते उते सब, सिर्फ घर का 1 या 2 ड्रेस हुए, और उसकी लॉक लगा दिया और चाबी अपने असिस्टेंट को दे दी, और कह दिया जब तक मैं किताब खत्म ना कर दूं
ये चाबी मत देना. That's what actually he did. So that is how he met his deadline. So इसको भी कुछ कहा जाता है. Can anybody say what is this called? नहीं, not first. मैं उस पे आऊँगा चल के. So एक और चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है, और वो बताया कि कुछ डिसिसिव मोमेंट्स होते हैं. There are certain decisive moments. ऑफिस से घर आता हूँ, तो घर आने के बाद शाम को ठीक 5:45 बजे जब मैं घर पहुंचता हूँ, वो मेरा एक डिसिसिव मोमेंट है. कैसे? अब मैं नाइट सूट पहन के बैठ जाऊं चेंज करके, या मैं अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूं. उससे डिसाइड होगा कि मैं नीचे वर्कआउट करने जाऊंगा या काउच के सामने बैठ के अपना सोडा और उसमें ऐसा लिखा है इंडियन करी को ऑर्डर करके, और पूरी फिर मेरी ऐसी निकल जाएगी. तो दैट इज द डिसिसिव मोमेंट. बस वो 2 मिनट का डिसिसिव मोमेंट में अगर आपने एक्शन अच्छा ले लिया तो पूरा का पूरा आपका इवनिंग बेटर हो सकती है. सो यू शुड बी केयरफुल एट दैट डिसिसिव मोमेंट. यस. When you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. Read before bed each night, become read 1 page. Do 30 minutes of yoga, becomes take out my yoga mat. Study for class becomes open my notes. Fold the laundry becomes fold 1 pair of socks. Run 3 miles become jog for 100 meters. राइट? कितना खूबसूरत है ये. तो ये 2 मिनट रूल है, इसको उन्होंने बहुत एम्फेसाइज किया. इन्होंने कहा कि पहले हैबिट को एस्टेब्लिश करिए, फिर इंप्रूव करिए. एस्टेब्लिश करिए, और एस्टेब्लिश करने का तरीका उन्होंने बताया, रिपीटिशंस करिए और शॉर्ट में करिए, इजी तरीके से करिए, सो दैट एक्चुअली यू कैन रिपीट दैट. सो रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन्होंने बोला स्टार्ट वेरी इजी, लाइक मेडिटेट फॉर 2 मिनट्स एवरी डे. पुट ऑन योर रनिंग शूज, बस पहन लो, फिर 10 मिनट वॉक करो, फिर 10,000 कदम चलो, फिर 5 किलोमीटर दौड़ो, फिर मैराथन दौड़ो. राइट 1 सेंटेंस, पैराग्राफ, 1000 वर्ड्स, so something like this. So start very slow, whichever habit you want to. Yes. Master the habit of showing up, reinforce your new identity. हाँ, ये चीज करनी. Master the habit of showing up. मिस नहीं करना. बिल्कुल आपको मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है. You have to show up. So stay below the. There are 2 more tips. Stay below the point where it feels like a heavy chore, and document, measure, and count. These are additional tips that they have given. तो आपको इतना भी हैवी मत करो कि आपसे फिर अगले दिन भैया मैं तो थक गया, मैं नहीं कर पाऊंगा. तो उन्होंने बोला कमिटमेंट डिवाइस. एक्चुअली ये जो मैं अभी आपको बात कर रहा था ना, उस बंदे का वो कमिटमेंट डिवाइस था, वो राइटर का. क्या कमिटमेंट डिवाइस कर दिया? कपड़े ही सारे हट गए, पार्टी में नहीं जा सकता. तो अब मैं आई एम कमिटेड टू राइट. सो इस तरह से उन्होंने और भी एग्जांपल्स दे रखे. क्या दे रखा है कि अगर आपको कसिनो में, आपके शहर में बहुत सारे कसिनो हैं, तो जब आप होश में हो उसी वक्त आप कसिनो वाले को कह दो, हेलो या आपकी ब्लैक लिस्टेड के अंदर एक नाम और ऐड करो, खुद का. ऐसा दिया उसने, खुद का ही नाम ऐड करा दो. दूसरा, घर पे वॉलेट छोड़ के जाओ, ताकि फिर आप ना जंक फूड नहीं खाओगे, ऐसी जगह जा रहे हो. तीसरा, उन्होंने कहा कि अपना तो इंटरनेट राउटर है, उसका पावर आउटलेट के साथ ऐसा वहाँ पे एक लगा दो कि वो 10 बजे बाद उसका पावर ही खत्म हो जाए. उन्होंने कहा कि योगा सेशन का पेमेंट पहले से ही कर दो. तो पेमेंट पहले से ही कर दोगे तो करोगे. अपने बीवी को कह दो कि ना पासवर्ड रीसेट कर दे, और ऑल इज पैक्ड. तो ये जो आप गाना सुन रहे थे दोस्तों, बार बार जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, और जो आप मॉर्निंग में भी मैंने आपको सुनाया, वो ब्यूटीफुल सॉन्ग इज एक्चुअली दिस. सो दिस इज ऑलिसिस कॉन्ट्रैक्ट. ये बंदे ने, मतलब यू नो द स्टोरी कि आइलैंड पे सब चले जाके मर जाते थे, राइट. सो ऐसा गाना गाती थी वो लोग कि सबके सब हिप्नोटाइज होके वहीं पे चले आते थे, देन एवरीबॉडी वाज किल्ड. तो इस बंदे को पता पड़ गया. तो ऑडिसियस ने क्या किया? ऑडिसियस ने कहा कि एक काम करो, मेरे को गाना तो सुनना है, क्योंकि गाना बहुत मजेदार है. तो मैं गाना सुनूंगा, पर तुम में से कोई गाना नहीं सुनेगा. तो तुम सब है ना ईयर प्लग लगा, ठीक है, ताकि तुम तो उसकी तरफ हिप्नोटाइज नहीं होगे. और मैं को ईयर प्लग नहीं लगाऊंगा, पर मेरे हाथ बांध दूंगा. तो उसने वहां पे अपने मास्क से अपने हाथ बनवा दिए. सो दैट इज हाउ ही एंश्योर्ड हिज फ्यूचर बिहेवियर इज डिजायरेबल. सो दिस इज ऑलिसिस कॉन्ट्रैक्ट.
So giving consent to treatment in advance, knowing that their cognitive abilities might be impaired at the time when they need that treatment. So he asked his sailors to tie himself to the mast to avoid the hypnotic power of the silence. ये ब्यूटीफुल वो चीज है. फिर उन्होंने ना कुछ आपको टिप्स दे रखे कि आप ये चाहो तो ये वन टाइम आप ये एक्शन ले सकते हो. आप चाहो तो इनमें से कुछ फॉलो करो. जैसे कि आप नींद के लिए एक अच्छा मैट्रेस खरीद लो. बिल्कुल डार्क कर्टन्स. मैंने पढ़ा ऐसा कि अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो इट शुड बी पिच डार्क. द रूम शुड बी रियली पिच डार्क. उसमें रेड लाइट भी टीवी का या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नहीं होना चाहिए. ऐसा दिया रखा है. तो एनीवे, तो इस तरह की आप कुछ चीजें कर सकते हो if you want. Then of course the reward. We are more likely to repeat a behavior when the experience is satisfying. इसका इन्होंने एग्जांपल दिया रिगले च्युइंगम. उन्होंने बोला कि ये च्युइंगम ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लेवर. कह रहे यार च्युइंगम चबाओगे तो पहले ऐसा होता था च्युइंगम चबाओगे तो दांतों के लिए अच्छा है, मसूड़ों के लिए अच्छा नहीं. फ्लेवर आते हो तो आप इसको नेक्स्ट टाइम भी रिपीट करोगे, इसको रीइंफोर्स करते. तो अब जो अपन बात कर रहे हैं दैट इज व्हाट कैन वी डू सो दैट वी कैन रिपीट दिस नेक्स्ट टाइम. सो बैड यस या Why it is difficult to develop good habits. Bad habits often give instantaneous gratification. Good habits typically give us delayed gratification. Do you agree? ऐसा होता है? गड़बड़ काम करो तो तुरंत मजा आता है. अच्छे काम करने में तुरंत मजा नहीं है, थोड़ा सा डिलेड है. और इन्होंने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि हमारा दिमाग इस तरह से है नहीं. हम तो लाखों करोड़ों साल से जो चीज कर रहे हैं, करोड़ों तो ज्यादा हो गया, लाखों साल से जो चीज हम लोग हमारा दिमाग में है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. उसी से चलता है. और ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तो इन्होंने कहा कुछ 400-500 सालों से ही हम अपने आप को आदत डाल रहे हैं. तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम हमेशा बार बार स्लिप हो जाते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. द ह्यूमन ब्रेन डिड नॉट इवॉल्व फॉर लाइफ इन डिलेड रिटर्न एनवायरमेंट. सो उन्होंने फिर ये भी कहा जो मैंने आपको शुरू में कहा, आप अपने आप को रिवॉर्ड तो दें पर ऐसा रिवॉर्ड ना दें, ठीक है, या एक नए बेटर जूते गिफ्ट कर सकते. फिर उन्होंने कहा कि ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट योर हैबिट्स. उनको लिखो. अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना वॉक करते हो रेगुलरली? 5 किलोमीटर. देखिए आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कि ट्रिप का तो देखते हो ये 3.5 कैसे आ रहा है. तो आज बरसात थी, आज सर्दी थी, आज मेरा सिर दुख रहा था, आज मैं ट्रैवल कर रहा था, आज ये हो रहा था, आज ये हो रहा था. सो यू नो, सो अनलेस यू ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट, आई एम नॉट सेइंग एवरीडे करिए, पर मैं कह रहा हूं एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आप कितना कर रहे हैं, है ना. यू शुड बी ऑनेस्ट. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एंड डॉक्यूमेंट. कैलेंडर में लिख लीजिए, स्ट्रावा ले लें, फिटबिट ले लें, कुछ और कर लें. फ्रैंकलिन के बारे में पता है आप लोगों को कि वो लिस्ट लेके घूमता था 13 हैबिट्स की अपने जेब में. वो बैठ के और सारे समय वो he used to watch and he used to see and check himself. Yes. Recover quickly. Never miss twice. Do not miss 2 in a row. Missing once is an accident. Missing twice is the start of a new habit. Simply doing something, 10 squats, 5 sprints, a push-up, anything really is huge. Don't put up a zero. Don't put up a zero. Thank you very much. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज. You have to show up. बाई चांस आज नहीं हुआ तो अब कल तो पक्के से ही जाना है. 2 बार नहीं मिस कर देना. अब 2 बार मिस कर दिया वो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो ऐसा इस बुक के अंदर हाईलाइट किया हुआ है कि यू शुड रिकवर क्विकली एंड डोंट टेक टू लॉन्ग. थोड़ा ही करो, ज्यादा मत करो, पर जाओ जरूर. वो कहते हैं जिम जाओ और जिम जाके 1 मिनट करके वापस आ जाओ, पर जिम तो जाओ. बट देन उन्होंने साथ में अब धीरे धीरे टू मच ऑफ ट्रैकिंग के ऊपर भी लिखा है कि टू मच ऑफ ट्रैकिंग में नॉट बी गुड. वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब आप है ना उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ज्यादा आ गए हो और आप एक्चुअल फन उसका मिस कर रहे हो. तो उन्होंने कहा इसको गुड हार्ट्स लॉ कहते हैं. व्हाट इज गुड हार्ट्स लॉ? इन्होंने बताया कि ये देखो
जैसे ही किसी आप मेजरमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो तो वो मेजरमेंट बेकार हो जाता है. Once you choose a particular way to measure a particular thing, that loses its. और आपने अगर उसको ये कहा कि वेट कितनी भारी नेल्स बनाओगे, तो फिर वो 3 नेल बना के छोड़ देगा. In our data-driven world, we tend to quantify. But just because you can measure something doesn't mean it's the most important thing. And just because you can't measure something doesn't mean it's not important. Oh, big hand, yeah, lovely. Very nice. आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते उसका मतलब ये नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको नींद कैसी आई, आपका मूड कैसा चल रहा है, बीवी से डांट कितनी सुन रहे हो, इम्पोर्टेंट है ना ये भी. अब इसको मेजर कैसे करें. अब इन्होंने एक और चीज कही है कि कुछ रेगुलेशन एंड पनिशमेंट से भी हैबिट्स में मदद मिलती है. तो इन्होंने बताया कि इन जनरल अगर मोर लोकल टेंजिबल कॉन्क्रीट इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता है तो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. पर अगर ग्लोबल हो, इंटेंजिबल हो, वेग हो, तो फिर वो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता. अनफॉर्चुनेटली इसीलिए हमारा सारा ध्यान जाता है अपनी फैमिली पे, जॉब पे, रिलीजन पे, कंट्री पे. हमारा बहुत सारा ग्लोबल इश्यूज पे ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि एनवायरमेंट एंड मदर अर्थ. इन्होंने फिर ये भी कहा कि स्पेसिफिक रेगुलेशन एंड पनिशमेंट में एक्चुअली हेल्प. कैसे कि अगर आपके मॉर्निंग वॉकर्स हैं तो आप कह दीजिए भैया आप नहीं आ रहे हो, जो जिस दिन नहीं आएगा उसको 100 रुपया फाइन. आप में से कोई ऐसा ग्रुप बना के करता है कि कोई फाइन वाइन देता है कि भाई चलो नहीं आएंगे तो हम फाइन देंगे. तो इस तरह का आप बना सकते हो इफ देयर इज अ ग्रुप एक्टिविटी. हम करते थे नेपाल के अंदर. Whenever we used to have an activity and somebody was entering late, then you were supposed to make a dance and then take your seat. तो अब अगली बार से कौन आया था लेट आज तो आया था? विशाल. हाँ जी डॉक्टर साहब, विशाल जी को डांस करना सिखाना पड़ेगा. What is partner's role? Do you agree कि there can be a partner's role? आपकी बीवी आपको सुधार सकती है? कितने लोग मानते हैं कि बीवियां सुधार सकती हैं? Knowing that someone is watching. भाई साहब आपको लगे कि ना लगे, somebody is watching. Trust me, somebody is watching. In fact, ऐसा कुछ है डेटा कि सिंगल और अनमैरिड पीपल हैव लिटिल मोर हेल्थ इश्यूज. मतलब अगर आप उनकी लॉन्जेविटी देखो ना तो लॉन्जेविटी कम होती है वास्तव में. इसलिए नहीं कि कोई मैरिड आदमी बहुत खुश है. इट सीम्स लॉन्गर. ये कौन है यार, थोड़ा अंदर से निकल रहा है. आज कुमुद नहीं आई साइड में इसलिए मुंह खुल रहा है. Possibly because of less disciplined life, you know. So there is a data, there is a scientific data कि सिंगल मतलब I don't mind बच्चों, तुम लोग आजकल बड़े सोचने लग जाते हो हम शादी करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे. But at least you should be aware of this fact कि by chance अगर ऐसा अजीब सा ख्याल आपके मन में आता हो तो at least take good care of your physical and mental health before you say this. Now the last part of the book. How important are the genes? ये खास तौर से उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. आप कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करते हो कि यार ये बड़े होके क्या करेगा. इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी. इन्होंने कहा ये बेसिकली कि आपके एफर्ट भी इंपॉर्टेंट है और जीन्स भी इंपॉर्टेंट है. इन्होंने कहा जितने भी ओलंपिक चैंपियंस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बॉडी के शेप को और जीन्स को भी यूज करा है. They would have been a failure if they had done something else. अगर सचिन तेंदुलकर उतनी शिद्दत से स्विमिंग करता तो स्विमिंग का सचिन तेंदुलकर बनता, इसकी संभावना बहुत कम है. तो there was something in सचिन तेंदुलकर beyond his efforts. तो ये भी एक अच्छा कोइंसिडेंस है जो हिट एंड ट्रायल से होता है. अनफॉर्चुनेटली उसने एक भी किताब में लिखा है कि आपकी लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि आप जिंदगी भर हिट एंड ट्राई करते रहो. ठीक है ना, पर थोड़ा सा तो ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो. और उस पर भी उन्होंने बताया कि क्या सोचना चाहिए आप लोगों को. See, the key is to direct your effort toward the areas that both excite you and match your natural skills to align your ambition with your ability. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना. So genes do not determine your destiny, but they determine your areas of opportunity. Your unique cluster of genetic traits predispose you to a particular personality, and that you have to use. Yes. What feels like fun to me but work to others? Yeah, identify that.
What makes me lose track of time? What comes naturally to me? Yeah. So this is for all of you and for the parents and grandparents. कि आप ये देखो कि आपका बच्चा क्या चीज करने में नेचुरली थोड़ा सा इंक्लाइंड है, टैलेंटेड है और वो टायर्ड फील नहीं कर रहा. आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया. More you master a specific skill, the harder it becomes for others to compete with you. आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सराफा या खजूरी बाजार बहुत खाली खाली सा मार्केट है, वहां पे बहुत जगह है? सॉरी, ऐसा लगता है? नहीं लगता है? अच्छा, अब हम आपको कहते हैं, अब आप वापस जाइए और देखिए कि वहां पे बहुत जगह है, बस एक ही शर्त है. ये मेरे ताऊजी कहते थे, किताब में नहीं लिखा है. वो कहते थे, सर भाई दी ताऊजी का रेफरेंस वैली एंड लव में है अभी भी, डॉक्टर शांति स्वरूप रावत. वो कहते थे कि टॉप फ्लोर हर बिल्डिंग की खाली है, वापस जाके देख कर आओ. तो किसी भी बिल्डिंग में चढ़ जाओ. वो ये कहते थे कि ये मत सोच कि ईएनटी लेना है कि ऑर्थोपेडिक्स लेना है कि पैथोलॉजी लेना है, जो भी जाना है उसकी टॉप फ्लोर पे जाना. तो टॉप फ्लोर में हमेशा जगह होती है, वहां पे आप हमेशा अपनी जगह बना सकते हो. तो वापस जाके देखना, सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी है टॉप फ्लोर. फिर उन्होंने कहा ये ग्लॉडीलॉक्स रूल. तो ये चीज थी जो हम बता रहे थे आपको. अगर आप बहुत ज्यादा वो इजी कर दोगे तो बोर्डम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कर दोगे तो आप स्ट्रेस हो जाओगे. तो आपका एक जोन है, उसी जोन में आप अपने आप को रखिए. सो दैट दे हैव कैलकुलेटेड 4%. 4% आपकी करंट एबिलिटी से ज्यादा, उस पर आप एफर्ट मार. 4% beyond your current ability is the most exciting thing. ये ना इस चीज को काफी यूज भी करते हैं. जैसे कि मेरे को चेस खेलने का शौक है, तो चेस ऑनलाइन में वो इसी चीज को यूज करते हैं. तो जब आप चेस ऑनलाइन पे जाते हो तो आपके पास जो रैंडम प्लेयर आता है वो आपके लेवल का ही होता है, उसी लेवल से आप चेस खेलते हो. लास्ट पार्ट ऑफ द बुक. कैन एनीबडी इवन इमेजिन दैट देयर कैन बी अ डाउनसाइड ऑफ अ हैबिट? See, what is the downside of creating habits? And you know, I like such books जिसपे ना वो अपनी बात का फिर आखिरी के अंदर थोड़ा सा फ्लिप साइड भी दे दें. तो ये मैंने कुछ डाउन साइड बताइए दोस्तों. इन जनरल ये बताया कि आप ना ज्यादा ही ऑटोमेटिक करके यू बिकम लेस सेंसिटिव टू फीडबैक. आपको लगता है नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो हर महीने एक किताब पढ़ता हूँ, मुझे तो आता है किताब पढ़ना कैसे है. आप अलग से बैठो, डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी से पूछो कि सर मैं कहाँ और इम्प्रूव करूँ, तो शायद वो बताएंगे कि वही तू कहाँ और इम्प्रूव कर सकता है. But you know, we might just start believing that we are just doing our best. So we fall into mindless repetition. When you can do good enough on autopilot, then you will not do better, because you just are happy with the good enough. You assume you are getting better because आप बस उसी से experience लेते जा रहे हो. तो इन्होंने ये कहा कि habits alone are not enough. Habits मतलब good habits, of course. Good habits plus deliberate effort to improve. Review and reflect. That will create mastery. तो habits are useful because वो आपको continuity देते हैं, आपकी energy level को कम कर देते हैं, automaticity पे आ जाते हो. But then you have to be careful that you are also improving. You can take close to that. So reflect and review. That is very important. Now friends, as we celebrate the new year, please ask yourself, what went well last year? What did not go so well last year? And what did I learn? मुझे लगता है हम सबको ये 3 प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए. मैं ना अभी 30 सेकंड रुक रहा हूं यहीं पर, so that all of us can reflect. What went well last year? Okay. What did not go well last year? Okay, that's all right. So what did I learn? Yes. Men are born soft and supple, dead they are stiff and hard. Plants are born tender and plain, dead
but they are brittle and dry. Thus, whoever is stiff and inflexible is a disciple of death. Whoever is soft and yielding is a disciple of life. The hard and stiff will be broken, the soft and supple will prevail. Thank you very much. Let's give a big hand to this boy. Lao Tzu ने कितना अच्छा लिखा दोस्तों की habits are good, but still we should be moldable and we should be flexible and not be very rigid. So friends, these are few of the good habits that they have put it in a particular slide. You know, plan your meals for the week, please. Okay, and also massage your gums. हाँ, यहाँ पे जो डेंटल सर्जन्स हैं वो मुझे सिखाते रहते हैं हार्ट की भी हेल्थ गम्स की मसाज से इंप्रूव होती है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक हमने पढ़ा यू कैन हील योर लाइफ में नेगेटिव सेल्फ टॉक को हटाना है टेल अदर्स हाउ यू ट्रूली फील डोंट से जस्ट आई एम ओके यूज अ प्लानर डोंट सिट फॉर longer than an hour at a time at a place go to bed and wake up at your desired time you should ask children मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ next morning please ask yourself am I very happy with the thing that I did for last 1 hour before I slept last night you should be very proud of yourself कि आपने पिछली रात आखिरी के 1 घंटे में क्या किया आज आप कितने खुश हो उस चीज से okay so that will really take you to a better understanding so this is the summary friends yeah Promoting desirable habits. Behaviors are effortless here. Obvious, attractive, easy, satisfying. Discouraging and undesirable habits. Behavior are difficult here. Invisible, unattractive, hard, dissatisfying. And very important. Yeah. Let's never stop reflecting and making improvements. Yeah. Let's give a big hand for this. Let's try that we will not stop reflecting and making improvements. Ladies and gentlemen, that's all for today. After today morning, wish you all the very best. Dr. Ashok Ladda sir, Dr. Lahoti sir, yeah please आइए ना sir. Dr. कोठारी sir, please come. आज तो मुझे लगा सर्जन हैं. मतलब I mean like you know, Dr. Manish is here. Manish डॉक्टर साहब के बॉस हमारे बॉन्ड सर इज हेयर केसी शर्मा सर देन वी हैव डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी सर सॉरी हाँ डॉक्टर विशाल इज हेयर कितने सर्जन या प्लीज आ जाइए बच्चे लोग आप या नो वी कैन पुट इट वेरी नाइस वेरी नाइस या तालियां बजाते रहोगे बच्चे लोग डॉक्टर सीपी कोठारी तो ऐसे लग रहा है ये भी यहाँ खड़े हो जाए डॉक्टर पंजाबी सर आइए थैंक यू डॉक्टर मनीष So we are coming to the end. मैं कुछ कमेंट्स के लिए कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा सबसे पहले मैं डॉक्टर पुरानी सर से रिक्वेस्ट So, Priya Bharat, in your inimitable style, which is unique, captivating, interacting, you summarize the book, उसका निचोड़ निकाल के रख देते हो और लोगों के लिए आसान बना देते हो. I love this approach to reading and sharing whatever you read. तो हैबिट को लेके मन में मेरे भी बहुत सारे विचार आते रहते हैं और हमें हैबिट का गुलाम नहीं बनना है, खराब हैबिट का, इवन अच्छी हैबिट का भी गुलाम नहीं बनना है,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ओवरराइडिंग हो जाती हैं। तो खूब अच्छी हैबिट है, लेकिन आप उसके भी गुलाम बन गए तो जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, तो अच्छी आदत की अति भी बुरी हो जाएगी। बस इसी का ध्यान रखें। Thank you, an inquisitive audience. For such events to occur, and it is very necessary that most of us should one time or the other attend, even at this age. Why I have come? I have come here to learn new thing, what is going on, what needs improvement, and what needs corrections, and what needs revisions. So all these things is a lifelong process continuing. You cannot become static. You have to be active and participate in the world and affairs which are going on at the same time. So things will change. Not everybody will agree with you, doesn't matter. If you think you are on the right track, you are thinking well, and you are delivering good to people, let those only be addressed who want to improve. If you address 100 people, not all of them will be convinced. Let it be. So don't forget about it. Who is following you, who is not following you. Just your job is to deliver good things to people as much as possible and forget about it. That's all. Thank you very much for giving me the opportunity to talk to you. Yeah. You should have told me. Here, I'm thankful to his activity because as a surgeon and as a busy surgeon, I confess that I don't have a good habit of reading. I cannot read for a longer time. This is my problem. But here I could read through him. I could get the messages, and I like the philosophy, which was the last slide, that you should have flexibility, not the rigidity. किताब के बारे में दोस्तों, मेरा सबका अपना तरीका होता है। मेरा पर्सनल तरीका ये है कि मैं ऑनलाइन पहले बात तो नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मुझे हार्ड कॉपीज चाहिए होती है। और मेरा तरीका ये भी है कि मैं फ्रंट पेज पे लिख देता हूँ ये किताब मैंने कब किसके रिकमेंडेशन पे ली थी या किसी ने मुझे गिफ्ट करी है, तो उस पर मैं डेट डाल देता हूँ और सेल्फ बॉट या गिफ्टेड वो लिख देता हूँ। और फिर मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं बिना पेन के कभी नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं जैसे कोई टेक्स्ट बुक अपन पढ़ते थे बचपन में, उस तरह से नोट्स बनाता रहता हूँ। और जब अगला पेज पढ़ता हूँ तो लिख देता हूँ कि अब आप कौन सी डेट पे आ गए। तो मैं डेट्स डालता रहता हूँ ताकि मुझे रफली एक आइडिया रहता है कि किस तारीख को मैंने कितने पेजेस पर कंप्लीट किए थे और कहाँ तक पहुँचा। एंड देन रफली हाउ मच टाइम डू आई। नॉर्मली मैं एक बार में एक या कभी कभी दो किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, बट आई ट्राई नॉट टू रीड टू मैनी बुक्स एट द सेम टाइम। एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट द ऑथर या उनके मैं नेट पे जाके दूसरे लोगों के रिव्यूज़ जानने की कोशिश करता हूँ। इट्स नॉट ईजी टू कॉन्टैक्ट ऑथर्स, दीज आर बेस्ट सेलर बुक्स करना, पर जब संभव होता है तो फीलिंग गुड के डेविड बर्न्स वाज नाइस इनफ टू रिप्लाई टू लॉट ऑफ ईमेल्स। I had read the book earlier, but I'm grateful for that. Number one. Number two, as a surgeon, when I was running, I was using my hind foot, and I was told that either you use your midfoot or forefoot, because if you use your hind foot, you are going to damage your knee. So it was only because of a mentor to guide you for that. Absolutely. Thank you so much. We'll try to be very brief. Yeah. Very good. Yeah. आपने कहा हैबिट्स, हम हैबिट्स की एक रिफ्लेक्शन होते हैं। मेरा एक अनुभव कुछ लर्निंग है कि अच्छी आदतें पहाड़ पर चढ़ने जैसी है। चढ़ने में कठिनाई भी होती है और अधिकतर ऊपर पहुंचने में हम अकेले ही होते हैं। और बुरी आदतें पहाड़ पर गिरने जैसी हैं, अपने साथ कई बुरी चीज़ों को लेकर गिरती हैं और गड्ढे में पड़ी रहती है। Thank you so much. अभी एक मिनट। हाँ जी। हैबिट्स बनाने से बनती है। अभी 2 दिन पहले नई दुनिया ने एक शानदार कार्यक्रम किया था जिसमें रागिनी मक्खर ने श्री रामचंद्र जी का पूरा जीवन चरित्र वर्णन किया था, पूरी टीम थी। यू विल सरप्राइज, एक छोटे से अवधि में शायद वो 20 मिनट की होगी, उसमें 5 बार ड्रेस बदल कर आई हो। 5 times शी चेंज्ड हर ड्रेस।
हैबिट्स बनाने से बनती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैन वी हैव अ ग्रुप पिक्चर वहाँ से? कि एक चीज आपने अभी 7 दिन के इसमें कहा था कि कोई भी स्किल को 2 दिन से नहीं छोड़ना चाहिए, वो बड़ा मतलब अट्रैक्टिव है। और मैं कई बार समय नहीं मिल पाता है तो भले 1 मिनट करता जरूर उसको, ताकि वो मेरी कंटिन्यूटी बनी रहती है। आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद। एक छोटी सी चीज शेयर करूंगा, मेरी बिटिया 4 दिन पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। आप सबकी ब्लेसिंग से और आशीर्वाद। बताइए। थैंक यू। मैं क्या तो ना सिर्फ अभी अपन हम लोग ये सोचें कि हम लोगों ने चीज डॉक्टर पौराणिक सर ने भी कही। एनीबॉडी? हेलो, मैं सुनीता दुबे। मुझे पौराणिक सर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि गुड हैबिट्स के भी गुलाम नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने लूज किया कम से कम 8 किलो वजन। उस टाइम मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस और बहुत ज़्यादा रिंकल्स और ऐसे फेस के ऊपर आने लगे थे, जबकि सब लोग बोलते थे नहीं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटिन्यूस। लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ है कि नहीं, गुड हैबिट्स को भी आप एक कंट्रोल में, एक टाइमली और वैसे अपन अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। या किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। यू आर राइट, एक्सरसाइज का भी एडिक्शन होता है। हमने एक बार टॉक दिया था, हाउ मच इज टू मच। तो किसी भी एडिक्शन से हमको बचना चाहिए। डॉक्टर हैबिट के साथ यही इशू है कि एच हटा दें तो भी अब बिट रह जाता है, ए हटा दें फिर भी बिट रह जाता है, बी भी हटा दें तो इट तो फिर भी रह जाता है। पी से तो चाय पी रहा है और क्या है। मुझे पता है कई लोगों को मुझसे शिकायत है कि आपने ना चाय भी ठीक से नहीं पिलाई। डॉक्टर अशोक लेटा सर। I'd just like to add, and I'm sure you must be aware of this, scientific study, which even I was not aware, which is a Copenhagen heart study. I don't know if you know it. This was in 2018, and they compared all the sports to their longevity of life. And longevity in the sense, longevity of useful life. And to my utmost surprise, out of all the sports that they compared, tennis gave 9.7 years of active addition to your life, while golf gave 5 years, sprinting and swimming could not go beyond 3 years. And the reason was, again very surprising, is that you need to have a game or an exercise where you have to socialize as well. Because if there is a game which involves 2 people, it gives you better addition of active life. And in tennis, we normally play at least 4 of us. And we are 16 at a time that you play. And after tennis, we sit down and just pull each other's leg. So I feel socializing has a very definitive impact. Very definitive impact rather than just singularly running on a cardio machine or sprinting on the streets. And this is scientifically proven. Thank you. Thank you. ये आप मुझे आर्टिकल because that's the way था. Sorry, yeah. So you know, again, so we are concluding now. We'll take maybe last one more comment, but let me just tell you that. Yes. So आप में से जो बुक रिव्यू ग्रुप में अभी भी नहीं है, they can send me a message and I will add you. If you have a colleague, doctor or non-doctor who would be able to enjoy, तो आप उनको कहें कि वो हमको WhatsApp कर दें तो हमको ऐड कर देंगे। और अगला बुक रिव्यू मोस्ट लाइकली अब 1 महीने की गैप में होगा, तो मोस्ट लाइकली विल डू इट इन मार्च। आई हैव येट नॉट डिसाइडेड। मैं सेपियंस पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी लोगों के लिए ड्राई हो सकती है। और डॉक्टर साधना, मुझे ये कहना है कि एक तो जो 1 घंटे का वक्त आपने इतना इम्पोर्टेंट दिया, तो सब लोग उसको ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एफर्ट है जो वो कर रहे हैं। फिजिकल लाइफ पर तो सब काम कर रहे थे, तो ये काम ज़रूर करें, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं बना सकते पर हैबिट्स बना सकते हैं, उससे हमारा भविष्य बन जाएगा। दूसरा, मैंने इसको एक और ऑल द बेस्ट कहा है कि ये प्रोग्राम मैं राजवाड़ा और गांधी हॉल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। आप में से कितने लोगों को ठीक ही लगा ये वेन्यू? बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू सो मच। देखो, ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है और इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में, डेवलप करने में बहुत मेहनत लगी है, और इसको मैं चाहता भी हूँ कि लोगों को पता भी पड़े इस बहाने से कि दिस फैसिलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट।
क्योंकि आप अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर सुमित शुक्ला। थैंक यू भरत सर, आपने आज इतने सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी अस्पताल को देखने की, और ये बहुत मेहनत से इस अस्पताल को बनाया गया है ताकि जो एडवांस सर्जरीज है और एडवांस ट्रीटमेंट है वो एक बहुत छोटी सी कॉस्ट में जो है वो आम जनता को पहुँच सके। और आज हमारे बीच में हमारे सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स और दूसरे सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पिछले 2-3 सालों से अपनी मेहनत से हजारों मरीजों का यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज कर चुके हैं, और आप लोग सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक सीनियर सर्जन है, डॉक्टर सतीश शुक्ला सर के पुत्र हैं, और कितना अद्भुत काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मतलब हम लोग रोज सुपर स्पेशलिटी की न्यूज़ अलग अलग तरह की न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। रिसेंटली मैंने 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने वहाँ पे रहने का सोचा है। 2 things I would like to make a big comment of। एक तो जैसे कोयले की खदान में आप काम कर रहे हो तो कोयले के दाग लगना ज़रूरी है, वैसे आप दोस्तों को जो पास में रखते हो उससे भी पता चलता है कि आप कौन हो, और वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग है हैबिट्स की। मेरे पिताजी अभी 100 साल के हुए और बचपन से उन्होंने एक्सरसाइज के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस बताया। वो आज भी रोज़ सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, और उनसे पूछती हूँ कि दादा आप क्या ज़रूरत है, तो यही कहते हैं कि मुझे ऐसे कैसे ज़्यादा है, तो इंडिपेंडेंटली सब कुछ करते हैं, और दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड हैबिट्स। इन्होंने शहर का बहुत नाम किया हुआ है, इनके लिए भी खूब तालियां। बहुत गर्व। मेरा जो कमेंट है वो मैडम ने जो बताया उससे संबंधित ही है। मुझे अभी भी कुछ अच्छी हैबिट्स चालू करनी है, उसमें से एक है मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन भारत सर जो बताते हैं उसको सुनता हूँ अच्छे से। तो अच्छी हैबिट्स तो होना ही चाहिए। अब मुझे थोड़ी बहुत अच्छी हैबिट्स है, वो मुझे कहाँ से मिली? तो मुझे मिली अपने दादा दादी से और नाना नानी से। जैसे उदाहरण के लिए सर ने बिस्तर इकट्ठा करने को बोला, मैं अपने नानी के यहाँ जब जाता था तो नियम था कि बिस्तर तो आपको अपना ही उठाना है। जो बैठे होंगे उन्होंने शायद दादा दादी से, और अब जो दादा दादी बन गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अच्छी हैबिट्स बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देना उनका कर्तव्य है, कृपया ये जरूर करें। Anyway, thank you so much. The group would be open for 24 hours. उसमें आप अधिकतर ये चीजें हम लिखें कि हमने इसमें से क्या लिया, है ना। एक एक जो भी पॉइंट्स होगी, सबसे तो मैं अभी माइक नहीं दे सकता हूँ, तो हम ग्रुप के अंदर आप लिख दीजिए कि हमने आज की मॉर्निंग से क्या लिया, सो दैट इट इज नॉट अ वेस्ट एफर्ट। आप सब लोगों का दिन बहुत शुभ हो। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।